Verma, welcome you all to our channel Defense Mavericks, and today we are here with our February current affairs for NDA, CDS, CAPF, and AFCAT. Okay, तो before moving ahead, I'd like to tell that अगर आपको इसके notes चाहिए, तो you can visit our Telegram channel, and you will get the notes there. Okay. After that, you can follow us on our Instagram handle, and for any course related details, you can message us on our WhatsApp number. Okay. So although February mein, there is one very important thing that happened that I have not covered in this video. I'm telling it now, and that is the budget. Okay, and why have I not it covered it yet? Because उसके लिए economics की एक special video आएगी that will be very much oriented for CDS NDA and CAPF upcoming. तो उसमें I'm going to cover budget thoroughly, and therefore I have covered certain aspects of it but not totally. Okay, तो without wasting any time, let's get started. First, defense news जो है, इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन. ओके, क्या नाम है? एक्यूवेरिन है. इट इज अ एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज. ओके, एंड दिस मीन्स व्हाट? फ्रेंड्स बेसिकली इन धिवे लैंग्वेज. राइट, तो दिस इज हैपनिंग. ओके, एंड वेयर इट इज हैपनिंग? तो इट इज हैपनिंग इन मालदीव्स दिस टाइम. ओके, then India Egypt joint military exercise cyclone 2025 begins in राजस्थान. मेनली यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहला साइक्लोन 2025 किसके साथ है? इजिप्ट के साथ है. मिलिट्री एक्सरसाइज है और कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में. ओके, एंड इंडिया के साइड से द पैराशूट एसएफ, द पैरा एसएफ रेजिमेंट इज देयर, एंड इजिप्शियन से द इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन. ओके, दैट इज देयर. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज 10 पैरा एसएफ ओनली, बिकॉज 10 पैरा एसएफ आपके राजस्थान और डेजर्ट वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट है. राइट. Next, we have fifth multilateral naval exercise Komodo started in Indonesia, and INS Shardul from India took part in it. Okay, and P-81. Okay, तो कोमोडो नेवल एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? तो इंडोनेशिया में हो रही है. इंडोनेशिया के साथ हम और कौन सी नेवल एक्सरसाइज करते हैं? यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, दैट विच नेवल एक्सरसाइज और विच एक्सरसाइज एसेंशियली वी डू विथ इंडोनेशिया. ओके, where it is happening? It is happening in Bali. Okay, and its theme is maritime partnership for peace and stability. Okay, exercise Komodo. Then India Japan joint military exercise Dharma Guardian. Okay, धर्मा गार्जियन भी है और इंडिया जापान के साथ वीर गार्जियन भी करता है. वीर गार्जियन इज एयरफोर्स एंड धर्मा गार्जियन इज आर्मी. ओके, where it is happening? It is happening at Mount Fuji in Japan. Okay, Mount Fujiyama एक बहुत फेमस जगह है जापान में. Okay, so there it is happening, right? Then next that we have is HAL renames HJT-36 trainer jet as यशस. तो आपसे अगर पूछा जाए अभी यशस जो रिसेंटली न्यूज में था, what was it? तो it is a trainer jet. Okay, it is a trainer jet जिसका पुराना नाम था HJT-36. It has been renamed as यशस. Okay, the aircraft features an advanced glass cockpit, FADEC control AL55I engine, and Indian-made avionics for better training efficiency. Okay, यशस जो है ये स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए है. Okay, स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए होता है. Then India's first private supersonic ramjet engine has been developed. Okay, तो हाइप्रिक्स एविएशन एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसने डेवलप किया है क्या? तो इंडिया का पहला सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, और क्या नाम है उसका? तेज. ओके, तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय तेज एंड इट हैज बीन टेस्टेड इन आईआईटी मद्रास, बट मेनली ये हाइप्रिक्स एविएशन नाम की कंपनी है बैंगलोर बेस्ड जिसने इसे डेवलप किया है. ओके, देन नेक्स्ट, Saab and HAL sign MOU for laser warning system LWS 310. Okay, so what is this Saab? This is basically the Swedish defense firm. Okay, Saab, and it has partnered with the Hindulastan Aeronautics Limited, and they have developed this electronic warfare laser warning system 310. Okay, it is a sophisticated defense technology जो कि डिजाइन की गई है to enhance the situational awareness and protect military platform from laser guided threats. Okay, so it is a laser warning system, laser guided missiles और ये उसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए this system is there. Okay, then Bharat Electronics Limited and Safran partner to manufacture hammer. अब अगेन ये hammer weapon क्या है?
तो हैमर स्टैंड्स फॉर हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज. ओके, तो इट इज साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया. इट इज अ कॉम्बैट प्रोवेड प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन. ओके, इट इज अ एयर टू ग्राउंड वेपन. ओके, बेसिकली मिसाइल है विच इज अडेप्टेबल फॉर रफेल एंड एलसीए तेजस. ठीक है, तो व्हाट इज दिस हैमर? दिस इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल. ठीक है, हैमर इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिजाइन कर रहा है अलॉन्ग विथ साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस. ओके, चलो नेक्स्ट दैट वी हैव इंडियन नेवी हैंड्स ओवर आईएनएस गुलदार फॉर इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम. ओके, तो आईएनएस गुलदार को डीकमीशन कर दिया गया. ओके, डीकमीशन आईएनएस गुलदार एंड महाराष्ट्र टूरिज्म ने इसे डेवलप करने के लिए किया है. किसी लिए? इंडिया के पहले अंडर वाटर म्यूजियम. तो इंडिया के पहले अंडर वाटर म्यूजियम किस शिप को यूज करके बनाई जा रही है? तो दैट इज आईएनएस गुलदार. ओके, देन एक्सरसाइज सागर कवच. सागर कवच किसका है? दिस इज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड. ओके, याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है. अपार्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, वी ऑल्सो हैव द इंडियन कोस्ट गार्ड दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. Okay, apart from these four forces, every other force will come under Ministry of Home Affairs. ठीक है, सिर्फ ये चार फोर्सेस हैं जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं बेसिकली, जिनके लिए भी आपको एक एसएसबी या पीएसबी देना पड़े. ओके, दैट विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. राइट, चलो नेक्स्ट. नाउ वी मस्ट हेड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स न्यूज. तो आर प्रज्ञानंदा ट्रायम्स ओवर गुकेश टू विन द टाटा स्टील मास्टर्स. और दो हमने ऑलरेडी इसे अपने एफकैट के स्पोर्ट्स वीडियो में देखा था, बट स्टिल अगेन यू विल सी. तो टाटा स्टील्स मास्टर्स, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू विन इट वाज विश्वनाथन आनंद. ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज आर प्रज्ञानंदा. आर प्रज्ञानंदा के बारे में हम और क्या जानते हैं? दैट आर प्रज्ञानंदा एंड वैशाली रमेश बाबू. ओके, Vaishali Ramesh Babu, basically the brother sister duo. This is the first ever brother sister duo in the world to get the Grandmaster title and the first ever brother sister duo in India to get Arjuna Awards. Okay, तो अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले ब्रदर सिस्टर डुओ और ग्रैंड मास्टर टाइटल जो कि आपको मिलता है 2500 ELO रेटिंग पे, दैट ऑल्सो फर्स्ट. ठीक है, तो किसे हराया? डी गुकेश, द करंट वर्ल्ड चैंपियन, द 18th वर्ल्ड चैंपियन, the youngest world champion and the second world champion from India. Okay, Tata Steel's Masters Chess में D Gukesh. Right, then India defends under 19 women's T20 World Cup title with a dominant win. Okay, so whom did they defeat? So they defeated the team of South Africa. Okay, at Biomass Oval. Right, यहाँ पे मैच हो रहा था और इंडिया ने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका को और जीता है अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल. ओके, नेक्स्ट वी हैव 38th नेशनल गेम्स. कहाँ हो रहे हैं? तो हल्द्वानी उत्तराखंड. ओके, हल्द्वानी उत्तराखंड में हो रहे थे हमारे 38th नेशनल गेम्स एंड उसका आपका मोटो था संकल्प से शिखर तक. ओके, ये मोटो था उसका. एंड Services emerged as the winner with 68 golds, followed by Maharashtra, followed by Haryana in the games. Uttarakhand was in the 7th position with a record 103 medals, including 24 golds. ठीक है, तो उत्तराखंड हल्द्वानी उत्तराखंड में हो रहा था ये. And 38th national games have concluded. Okay, then ICC reveals prize. Okay, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ICC चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है? तो इस बार द होस्ट नेशन इज बेसिकली और पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान इज द होस्ट नेशन और पहले दो मैचेस बाहर के ऑलरेडी बाहर हो चुकी है पाकिस्तान. ओके, इंडिया ने कब कब जीता है चैंपियंस ट्रॉफी? तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है 2002 में एंड 2013 में. ओके, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी दो बार जीता है 2002 एंड 30. दिस इज द फर्स्ट आईसीसी इवेंट इन पाकिस्तान सिंस 1996. बट याद रखना, इंडिया इज नॉट प्लेइंग इट्स मैचेस इन पाकिस्तान. India is the only country which is not playing in its matches as Pakistan. Rather, India is playing it in Dubai. ठीक है, इंडिया अपने सारे मैचेस कहाँ खेल रही है? तो दुबई में, बेसिकली द शारजाह स्टेडियम. ओके, तो इंडिया इज प्लेइंग ऑल इट्स मैचेस इन दुबई. राइट,
They'll remember this. Okay, let's move ahead. Marcus Stoinis was a very famous Australian cricketer. He retires from ODI ahead of the Champions Trophy. Okay, तो Marcus Stoinis अगर आपसे पूछा जाए who was recently in news is related to which sport or is a cricketer of which country? So Australia, and it is related to cricket. Okay. He also played a key role in the ODI World Cup win of Australia. Yes, he did. Okay. Then Sports Star Aces Awards दिए गए अभी, and Manu Bhaकर won the Sports Star Year of the Year female and Sports Women of the Year as well. ठीक है. Whereas P.R. Srijesh, our goalkeeper in hockey, he won the Sports Star of the Year male for his role in India's hockey bronze at 2024 Paris. Then Swapnil Kusale won Sportsman of the Year for his bronze medal in shooting at the Paris. Okay, so Sportsman of the Year was Swapnil Kushale, and Sports Star of the Year male was P.R. Srijesh. Whereas Sports Women of the Year and Sports Star of the Year female वो दोनों गया मनु भाकर को. Okay, चलो. Next that we have, now we come to a little space, ISRO, etc. Okay, Axiom 4 mission, very very important. This Axiom 4 mission जो है कहाँ जा रहा है? It is the 4th private astronaut mission to the International Space Station, and उसमें this person is very very important. Who is he? He is Wing Commander Shubhanshu Shukla. ठीक है, Wing Commander Shubhanshu Shukla, an Indian Air Force pilot who has been selected for this mission to go to the International Space Station. Okay, the first ever Indian to go to space was also Indian Air Force pilot named Rakesh Sharma. Okay, so we will see that Indian Air Force carries this legacy of sending people to missions. In fact, Wing Commander Shubhanshu Shukla has also been shortlisted for our Gaganyaan mission. Okay, he has also been shortlisted for our Gaganyaan mission. Okay, तो नाम याद रखिएगा Wing Commander Shubhanshu Shukla. ठीक है, it is organized by the Axiom Space in collaboration with NASA. ठीक है, and it will be launched by SpaceX Dragon from NASA Kennedy Space Center, Florida. Okay, तो Axiom Space, SpaceX, NASA, everyone is involved in it. ठीक है, this is marking India's first astronaut abroad ISS via NASA ISRO collaboration. Okay, very very important. ये जो राकेश शर्मा हमारे गए थे, he went with Roscosmos. Okay, he went with Russia. He did not go with NASA. So this is first NASA ISRO collaboration. Okay, Wing Commander Subhanshu Shukla. Then Blue Origin's 10th crewed flight sent 6 tourists to space again, which included an Indian called Tushar Mehta. ठीक है, तो Indian origin Tushar Mehta went. तो Blue Origin's NS-30 mission, okay, launched 6 space, and it was the perfect 10 mission. Okay, the 10th human flight for the new special aircraft. Okay, तो हमारे तुषार मेहता भी थे इसमें. Okay, next, China's Chang'e 7 to explore lunar South Pole in 2026. चाइना ने ऑलरेडी एक भेजा था जिसका नाम था Chang'e 6, and it was also a very historic mission because it was the first ever spacecraft to collect samples from moon and come back to earth. ठीक है, इसने कलेक्ट किया था सैंपल्स मून से, किसके? रॉक्स का, मून के रॉक्स का, एंड इट केम बैक टू अर्थ फॉर स्टडी. ओके, तो Chang'e 6, एंड ऑन द सेम लाइन वी हैव Chang'e 7. ओके, नेक्स्ट, इसरो टेस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन. इसरो ने टेस्ट किया इसको किसके लिए? तो गगनयान मिशन के लिए. ओके, क्रायोजेनिक इंजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजन, और इसमें डॉक्टर नंबी नारायणन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट. ओके, तो इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड अ वैक्यूम इग्निशन टेस्ट ऑफ CE-20. क्या है CE-20? हमारा क्रायोजेनिक इंजन है फॉर LVM-3. ओके, LVM-3. The test validated the engine start capabilities for गगनयान. तो टेस्ट हुआ ऑल्दो LVM-3 के लिए, बट इसे सेम गगनयान में यूज करने की बात हो रही है. राइट, देन ISRO unveils advanced FEAST 2025 software. Okay, so what is this? It is basically advanced finite element analysis software that has been launched by ISRO. तो याद रखिएगा नाम क्या है? FEAST, that was launched by ISRO. Then NASA selects SpaceX for Pandora mission. अब अगेन ये Pandora mission याद रखना किसका किसका है? तो SpaceX और NASA का कोलैबोरेशन है Pandora mission. Okay, so NASA awarded SpaceX the launch service for Pandora. What is the work for Pandora? Pandora will study 20 plus exoplanets
and their host starts to analyze atmospheric observations. ठीक है, और ये बेसिकली नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीडीएस का, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत पूछते हैं, तो प्लीज सी टू इट दैट it will be using a 17-inch telescope which will enhance the exposed planet studies alongside NASA's James Webb. Okay, तो नासा और स्पेसएक्स का जॉइंट वेंचर है पेंडोरा मिशन, राइट, टू स्टडी एक्सोप्लैनेट्स. एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? जो बेसिकली सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लूटो को भी एक्सोप्लैनेट कहा जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट. देन Shenzhou 19. Okay, Shenzhou 19 again, which is a Chinese satellite. It achieved new first in orbit artificial photosynthesis. उसने क्या किया? उसने स्पेस में जाके फोटोसिंथेसिस करा दिया आर्टिफिशियली. ओके, तो प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड इथिलीन फॉर द रॉकेट फ्यूल. तो स्पेस में ही रॉकेट फ्यूल बना रहे हैं, तो दैट विल बी सपोर्टिंग चाइनाज मून मिशन. तो दिस टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस. ओके, so this is again a very important breakthrough. Shenzhou 19 artificial photosynthesis to convert ethylene for rocket fuel. ठीक है, फिर नासा का स्फीयर एक्स टेलीस्कोप क्या है? ये स्फीयर एक्स टेलीस्कोप है टू मैप द इंटायर स्काई इन इंफ्रारेड. ओके, टू मैप द इंटायर स्काई इन इंफ्रारेड. दिस इज स्फीयर एक्स टेलीस्कोप. ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड स्काई मैपिंग होगी इसके थ्रू. ओके, स्फीयर एक्स मिशन, तो हमें क्या याद रखना है? स्फीयर एक्स मिशन नासा का है, पेंडोरा मिशन नासा का है. ओके, देन आवर एक्सियम 4 मिशन इज देयर. ऑलराइट, ब्लू ओरिजिन मिशन इज देयर. वेयरएज चांगे 6, चांगे 7 एंड शिंजो 19, ये किसका हो जाएगा? ये चाइना का हो जाएगा. ओके, देन अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसरो डेवलप्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोपेलेंट मिक्सर. ओके, तो इसरो इन कोलैबोरेशन विद द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सेंट्रल developed a 10-ton vertical planetary mixer which is largest globally for solid propellants. तो solid propellant fuel जो होता है ना, उसको बनाने के लिए जो mixture चाहिए, तो that has been developed by ISRO and this will basically enhance the production of solid rocket motors. Okay, हमारे पास basically solid fuel होता है और हमारे पास liquid fuel भी होता है, but solid fuel is considered more efficient because इसे carry करना easy होता है compared to the liquid fuel. Okay, obviously this is expected to play a crucial role in advancing India's space flight capabilities, obviously, right? Next we have Indian Railways unveils स्वरेल. ठीक है, ये स्वरेल क्या है? जैसे पहले था ना कि हमारा IRCTC से टिकट बुक होता था, देन PNR स्टेटस चेक करने के लिए दूसरा, फूड ऑर्डर करने के लिए IRCTC, ऐसा फूड अलग अलग ऐप्स था. तो स्वरेल हैज बेसिकली कंबाइंड एवरीथिंग. ओके, it is consolidating ticket booking, PNR status, food ordering and complaint management into a single platform. तो इंडियन रेलवेज ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है, दिस इज डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, स्वरेल ऐप, राइट. देन आकाशवाणी लॉन्चेस हर कंठ में भारत ऑन बसंत पंचमी. ठीक है, तो आकाशवाणी ने लॉन्च क्या किया है? हर कंठ में भारत. ओके, with the collaboration of Ministry of Culture, it launched the radio series called as Har Kanth Mein Bharat to promote Indian classical music. किसके लिए? For the promotion of Indian classical movie. Okay, music. All right. Then Guneri has been declared as Gujarat first biodiversity heritage site. ठीक है, गुनेरी विलेज कहाँ पे है? तो ये कच्छ में है, गुनेरी विलेज. ओके, ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन चुका है. तो कंजर्व इट्स यूनिक काइंड ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम. मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैनग्रोव वैसे होते हैं ना जो थोड़े पानी में होते हैं, ये लाइक 1-2 फीट पानी में डूबे होते हैं, इन्हें मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है. ओके, तो अनलाइक टिपिकल कोस्टल मैनग्रोव्स, गुनेरी मैनग्रोव्स थ्राइव इन नॉन टाइडल फ्लैट टेरेन. ओके, so this is basically a unique kind of mangrove जहाँ पे flat terrains और उतने पानी का presence नहीं होता है, but still they are there. Okay, okay, तो you know this is unlike typical coastal mangroves. coastal वाले mangroves आपके पानी में हुआ करते थे. इसकी माँ का, ये कैसे भूल जा रहे हैं हम? यहाँ लिखा हुआ है. Okay, next we have India adds 4 new Ramsar sites. Okay, and total reaches 89. तो 4 न्यू रामसार साइट्स कौन कौन से हैं? तो दैट इज सकरा कोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु. ओके, तेंत्रगल बर्ड सेंचुरी अगेन तमिलनाडु.
केचोपलरी वेटलैंड इन सिक्किम एंड उधावा लेक इन झारखंड। ओके, इन्हें ऐड किया गया किसमें, तो रामसार साइट्स। ये रामसार साइट्स क्या होते हैं, दिस इज बेसिकली फॉर वेटलैंड। ओके, एक रामसार कन्वेंशन हुआ था, रामसार इज अ सिटी इन ईरान। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ये चीज होती है, तो प्लीज रिमेंबर रामसार साइट्स। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अगेन इट वाज ऑब्जर्व्ड विद दिस सेम इन आगरा। और इस बार का आपका थीम क्या था, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, रामसार साइट्स, 4 न्यू रामसार साइट्स भी ऐड हुए हैं। क्योंकि हमारा पहला रामसार साइट्स था लेक चिल्का ऑफ ओडिशा। ओके, नेक्स्ट, saffron red-tail damselfly has been discovered in Karnataka. तो what is this saffron red-tail damselfly? Okay, damsel कैसे मतलब गर्ल होता है, but damselfly this is basically a kind of dragonfly. Okay, this is a kind of dragonfly which is जिसका नाम है Indosticta deccanensis. Okay, has been found in Chikmagaluru. Okay, it is a part of the platycichlidae family. क्या है, प्लेटिस्टिक्टिडेट फैमिली, प्लेटिसिक्टिडे फैमिली। ओके, ओके, एंड यहाँ पे एक इकोसिस्टम में रहती है, तो सैफरन रेडटेल डैमसल फ्लाई। ओके, देन इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज बीन देयर एट पद्मजा नायडू जू, where which is located in Darjeeling. Okay, Darjeeling Zoo को हम और क्या कहते हैं, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park. Okay, it is a very famous zoological park. So it is India's first wildlife biobank also, which is stored at -196 degree. तो ये क्या है, this is to preserve the DNA and tissue samples of 60 animals from 23 different species. Okay, and future biobanks भी प्लान हुए हैं कहाँ पे, तो दिल्ली नेशनल जू और नंदनकन जू में। राइट, तो ये आगे जाके उन स्पीशीज को डेवलप करना या एक्सटेंट होने से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, तो ये कहाँ लोकेटेड है, दार्जिलिंग में, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ओके, देन नेक्स्ट, फिलीपीन डिक्लेयर्स फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी अमिड राइजिंग राइस प्राइसेस। ओके, तो मेन हमें फिलीपींस देखना है क्योंकि ये न्यूज में बहुत है। फिलीपींस कहाँ पे है, इट इज देयर नियर द पैसिफिक ओशन। ओके, एक्चुअली नियर इन दी साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन। ओके, इंडोनेशिया मलेशिया के ऊपर। तो यू विल सी हियर वी विल हैव साउथ चाइना सी, यहाँ पे हमारे पास फिलीपीन सी है, नीचे इंडोनेशिया है। ओके, तो दिस इज बेसिकली अ वेरी अगेन अर्थक्वेक प्रोन जोन एंड इट हैज अ लॉट ऑफ वोल्केनोज एज वेल, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सबडक्शन जोन के पास है। राइट, यहाँ पे ये प्लेट इज गोइंग इनसाइड एंड देयरफॉर दीस चेन आइलैंड्स आर फॉर्म्ड, आर्डक आइलैंड्स आर फॉर्म्ड। राइट, तो दिस इज योर फिलीपींस। ओके, फिलीपींस को लेके एक और न्यूज है, दैट थिरुवलार्स स्टैचू हैज बीन अनवेल्ड इन फिलीपींस। नाउ हु इज दिस थिरुवलार? ओके, थिरुवलार वाज अ ग्रेट तमिल पोएट हु वाज ड्यूरिंग द संगम एज। ओके, हु वाज ड्यूरिंग द संगम एज एंड द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ हिम was Thirukural. Okay, it was Thirukural. The most famous work of Thiruvalluvar was Thirukural. Okay, very famous Tamil text, right? So he was a Tamil poet, okay, and philosopher, and he also had influence. The Tamil language etc. have influenced all around the world due to the Chola Empire mainly. Sangam time के जो 3 empires थे हमारे, Cholas, Cheras, and Pandyas. Okay, because of it the culture spread a lot outside as well. Okay, then next, Panama becomes first Latin American nation to exit China's Belt and Road Initiative. Now since this is a direct impact of Donald Trump's incoming, ठीक है, ये पैनामा कहाँ है, पैनामा इज लोकेटेड राइट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इस जगह पे, एज यू कैन सी दिस इज वेयर पैनामा इज। Okay, and it separates the Atlantic and the Pacific Ocean, and that's why we have very important canal here called as the Panama Canal. Okay, among the world's busiest canal में आता है ये, और उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, and that's why President Trump said that we are not going to let that happen. Okay, so now Panama will exit from China's Belt and Road Initiative. Right, next. Okay, Chaman Arora awarded Sahitya Academy Award in Dogri language. ठीक है, तो चमन अरोरा was awarded for his work
एक होर अश्वत्थामा. Okay, एक होर अश्वत्थामा. Okay, which means one more Ashwatthama. That was his book. This was the book that was a collection of short stories. Okay, the award is rupees 1 lakh in cash prize and a copper plate. Okay, उस पे साहित्य ऐसा लिखा होता है. तो चमन अरोड़ा कौन सा लैंग्वेज? तो डोगरी. ठीक है, ये डोगरी लैंग्वेज कहाँ की है? यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट वेयर इज दिस डोगरी लैंग्वेज ऑफ. ओके, चलो नेक्स्ट. ग्रैमी अवार्ड्स वर अनाउंस्ड एंड बियॉन्से एंड चंद्रिका टंडन विन बिग. ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? तो बियॉन्से के काउबॉय कार्टर को. रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है आपके केंड्रिक लमार के नॉट लाइक अस को. सॉन्ग ऑफ द ईयर अगेन नॉट लाइक अस, केंड्रिक लमार. बेस्ट न्यू आर्टिस्ट इज चैपल रोहन. ओके, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम सबरीना कारपेंटर. बट इंडियन ओरिजिन में वी हैव टू सी चंद्रिका टंडन वन द बेस्ट न्यू एज एल्बम फॉर त्रिवेणी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, Chandrika Tandon won the best new age album for her work त्रिवेणी. ठीक है, कहाँ हुआ था ये? तो इट वॉज द इवेंट ऑल्सो ऑनर्ड लॉस एंजलिस. ओके, एंड योर होस्ट वॉज ट्रेवर नोआ. ओके, एंड इसमें ऑनर किया गया लॉस एंजलिस को, रेस फंड किया गया वाइल्ड फायर विक्टिम्स के लिए, वहाँ हुआ नहीं था. ओके, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट इज चंद्रिका टंडन फॉर हर वर्क त्रिवेणी. Then Teshgo Gale becomes first black woman to win Mrs. World. Okay, so Teshgo Gale, okay, and she won the, okay, and basically where is she from? So she is from South Africa. The first black woman to win Mrs. World pageant title. Right. चलो. Next, we have some obituaries that were there. Okay, जो important है तो ओडिसी गुरु Madayar Raut. Okay, Mayadhar Raut. No, sorry, not Madayar. Mayadhar Raut, who was called as the father of Odissi dance, he passed away. ठीक है, तो if you are asked आपसे क्या पूछा जाएगा कि मायाधर राउत who recently passed away was associated with what? So he was associated with the Odissi dance and he introduced Sanchari Bhav, okay, Mudra Vinogya and Rasa theory, right? And also choreographed the Gita Govinda Ashtapadi. ठीक है, and he also founded Kala Vikas Kendra and Jayantika Association in Odisha. तो मायाधर रावत. Then Aga Khan IV. Okay, he passes away at the age of 88. Who was Aga Khan IV? तो Aga Khan IV was the spiritual leader of Ismaili Muslims. ठीक है, इस्माइली मुस्लिम्स. ये इस्माइली मुस्लिम्स कहाँ है? ये बेसिकली यूरोप के एक मुस्लिम्स हैं, जैसे कैसे पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम्स आ गए. ओके, तो ही वॉज इस्माइली मुस्लिम्स का हेड अगा खान IV. ओके, नेक्स्ट. Namibia's founding father, okay, Sam Nujoma passes away at 95. So who was Sam Nujoma? He was the founding father, or basically, you know, just like we have in our country, we call it father of the nation as Mahatma Gandhi. So Namibia's founding father was Sam Nujoma. Okay, he passed away. Right. Then he was the first president also of Namibia and the independence leader. Okay. Next. Bart de Wever was sworn in as the Belgium's new prime minister. ठीक है, तो बार्ट डी वीवर, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं. देन कश पटेल becomes the first Indian American FBI director. ओके, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन FBI डायरेक्टर बने हैं कौन? तो कैश पटेल. ठीक है, नाम याद रखिएगा, काश पटेल. आफ्टर दैट ग्रीस इलेक्ट्स, ओके, कॉन्स्टेंटाइन Tacitus as their new president. Okay, Greece elects Constantine Tacitus as their new president. Right. Then we have 4th February को हुआ था हमारा वर्ल्ड कैंसर डे. ओके, 4th February को था वर्ल्ड कैंसर डे. और इस बात का थीम क्या था? तो द थीम वाज यूनाइटेड बाय यूनिक. ओके, द थीम वाज यूनाइटेड बाय यूनिक. राइट, united by unique. Then next, Aero India again was happened कहाँ पे? तो Aero India हुआ है again बैंगलोर में. ओके, बेंगलुरु के येलाहंका एयरवेज पे होता है. और इस बार का थीम क्या था? तो थीम हैज बीन द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. एंड इस बार व्हाट वाज द हाईलाइट? द मेन हाईलाइट वाज द फाइटर एयरक्राफ्ट्स.
Su-57 and American F-35. ओके, अमेरिकन F-35 और Su-57 ये कहाँ का था? रशिया. And both of them are fifth generation, okay, stealth aircrafts. तो इंडिया इज प्लानिंग कि इन दोनों में से कौन सा बाई किया जाए. इट हैज बोथ द ऑफर्स, Su-57 और F-35 का. ओके, सो दीज टू वेर द मेन हाइलाइट्स. और ऐसा पहली बार हुआ है कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैव बीन डिस्प्लेड इन इंडिया. ओके, कहाँ होता है ये? एज आई टोल्ड यू, येलाहंका एयरफोर्स बेस स्टेशन इन बेंगलुरु. ओके, नेक्स्ट we have, yes, these three are related to a little bit to our budget, but as I said, budget को काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन आवर इकोनॉमी वीडियो. तो पीएम आशा स्कीम, पीएम आशा स्कीम क्या है? दिस हैज बीन अनाउंस्ड. ओके, तो ये है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बजट में अनाउंस हुआ है. द गवर्नमेंट अप्रूव्स द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. नाम से ही पता चल रहा है, अन्नदाता मीन्स व्हाट? फार्मर्स. आय मीन्स इनकम. संरक्षण, प्रोटेक्शन अभियान. ओके, तो दिस इज टू बेसिकली प्रोक्योर 100% ऑफ स्टेट्स तूर, उड़द एंड मसूर दाल. ओके, व्हाट आर दीज? दीज आर पल्सेस. दीज आर वराइटीज ऑफ पल्सेस. ओके, तूर, उड़द, मसूर. ओके, दाल होती है, दाल की वैरायटी होती है, राइट. तो द प्रोक्योरमेंट 100% कहाँ करेंगी? तो गवर्नमेंट करेगी. ओके, क्यों गवर्नमेंट करेगी? ताकि फार्मर्स को इससे पूरा का पूरा उन्हें इनकम मिले इसका. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ पल्स प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम. ठीक है, देन समुद्रयान मिशन की बात हुई है. दिस इज बेसिकली टू एक्सप्लोर द मिशन, और इसे हम मत्स्य 6000 भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? मत्स्य 6000, बिकॉज इट इज प्लानिंग टू गो टिल 6000 मीटर डीप. ओके, the 500 meter this year and 6000 meters next year, right. The mission aims to explore the ocean depths with the Samudrayan submersible. Okay, then government allocates for PM E-drive mission. ठीक है, PM E-drive mission. ये PM E-drive mission क्या है? This is basically to increase the production of electrical vehicles as much as possible अंडर द फेम 2 स्कीम. अगेन आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, ये फेम स्कीम क्या है? ठीक है, इट इज अगेन अबाउट अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट इसका फुल फॉर्म क्या होगा? दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, दिस स्कीम प्रमोट सीवी अडॉप्शन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज. ठीक है, तो ई ड्राइव्स, और उसके कौन कौन से आते हैं? ई बाइक्स, ई ट्रक्स, बसेस, एम्बुलेंस एंड चार्जिंग स्टेशंस एज वेल. ओके, नेक्स्ट, फोर्ट विलियम हैज बीन रीनेम्ड एज द विजय दुर्ग. ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ है? तो इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश एंड ये कैलकाटा में था. ठीक है, कैलकाटा और प्रेजेंट डे कोलकाता, और इट वाज करेंटली बीइंग यूज्ड एज द ईस्टर्न आर्मी कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी. ईस्टर्न आर्मी कमांड का जो हेडक्वार्टर्स था वो कहाँ बेस्ड था? दैट वाज बेस्ड इन फोर्ट विलियम. ठीक है, it was built in 1696 only. Okay, and it was the second and the most important fort. हमारा सबसे important और first fort था our Fort St. George. And where is this Fort St. George? This is in Chennai. ठीक है, not our but basically British. ठीक है, तो Fort St. George Chennai, this was the first fort built by British, but the most important was Fort William. ठीक है, it was rebuilt by Robert Clive as of the present day. ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. ही वाज द मैन बिहाइंड विनिंग ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इज क्रेडिटेड विद दैट. देन सिंगापुर इज अगेन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट. इसे कौन करता है रिलीज? तो इसे करता है हेनली. ठीक है, दिस इज हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स. ओके, हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स, और इंडिया का रैंक था 80th विथ एक्सेस टू 56 नेशंस. ओके, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट, मणिपुर सीएम बीरेन सिंह रिजाइंस बिफोर नो कॉन्फिडेंस मोशन. बहुत चीजें आ रही हैं. मणिपुर में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन बुलाता है? ये इसको आपको बुलाता है वहां के गवर्नर साहब. और प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो अंडर आता है आर्टिकल 356. ठीक है, इसमें आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए जाते हैं, आपके कोई अदर राइट्स नहीं लिए जाते हैं.
सिर्फ आपकी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है एंड प्रेसिडेंट exerts डायरेक्ट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ गवर्नर. Okay, so this is the first state under the current Narendra Modi government that has gone under a president rule since his tenure. ठीक है, and obviously Manipur has been there in a lot of news. Okay, मणिपुर में हमारे जो कुकी चिन ट्राइब्स हैं, ओके, देन हमारे नागा ट्राइब्स हैं एंड हमारे मीतीज लोग जो हैं, ओके, मैती, कुकी चिन, नागा, दीज आर द मेन एथनिक कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन implied and Indian army has been sent in to control the situation. ओके, चलो नेक्स्ट, यूथनेशिया. ये क्यों न्यूज में आया? क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने अलाउ किया है इस यूथनेशिया को. यूथनेशिया क्या होता है? बेसिकली यूथनेशिया इज बेसिकली कॉल्ड एज योर वी कैन से मर्सीफुल डेथ, दैट इफ अ पर्सन हैज एंटर्ड अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. क्या? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. व्हाट इज दिस स्टेट? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट ऐसा होता है दैट यू आर ओनली अलाइव बिकॉज ऑफ अ वेंटिलेटर. आपके बॉडी में जान नहीं बची एंड देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. ठीक है, तो दिस इज द एक्ट ऑफ एंडिंग अ पेशेंट्स लाइफ. ओके, विच इज बेसिकली टू एलिवेट हिम फ्रॉम सफरिंग. राइट, इसका मतलब होता है इजी डेथ. तो a very close person of you, a family member of you can take the decision on your behalf that okay, take this person out of medication and end the person's life. Okay, तो एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है. राइट, इंडिया में क्या है? इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया को लीगल किया गया था बाई 2018 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. ठीक है, बट एक्टिव ये इंडिया में नहीं है. राइट, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस. यूथेनेशिया अगेन केम इनटू न्यूज. राइट, इससे अगर हम देखें तो हमारे पॉलिटी का आर्टिकल 21 कनेक्ट होता है, दैट इज राइट टू लाइफ. उसी के अंदर ही आता है. ओके, राइट टू डाई पीसफुली और राइट टू डाई और हैव अ इजी डेथ comes under the purview of Article 21. Okay. Next, RBI to inject rupees 2.5 lakh crore to boost liquidity. Now, this is basically just to tell you कि RBI का functions क्या क्या होता है. यहाँ पे एक new term introduce किया था, that is called as VRR. What is this VRR? This is variable rate repo auction. ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाता है कि पैसों को मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है, क्यों मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है? बेसिकली बैंक्स में इंजेक्ट किया जाता है. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आरबीआई डज दैट. बिकॉज आरबीआई जैसे ही बैंक्स में पैसे डालेगी, बैंक्स विल देन लेंड इट आउट एंड बैंक्स विल लेंड इट आउट मोर मनी टू द पीपल. और जैसे ही पीपल के पास पैसा आएगा, पीपल विल स्पेंड द मनी ऑब्वियसली. और जैसे ही लोग स्पेंड करेंगे उसके में क्या होगा? हमारा डिमांड बढ़ेगा. ठीक है, और जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ा, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. ओके, और जैसे ही हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी. ओके, बट बेसिकली इसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ता है. ओके, दिस इज अ चेन इफेक्ट. तो यही किया जाता है. तो आरबीआई विल इंजेक्ट रुपीज 2.5 करोड़ टू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू अ वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन टू एनहांस लिक्विडिटी. अच्छा, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी सिंपली मीन्स द फ्लो ऑफ कैश. ठीक है, फ्लो ऑफ कैश और फ्लो ऑफ मनी. ठीक है, जैसे हम कहते हैं जो करेंसी होती है ना हमारी, दैट इज द मोस्ट लिक्विड. क्यों? आप एक से दूसरे के हाथ में पैसा दे दो, दैट इज द मोस्ट लिक्विड. बट उसके बाद जो हमारे डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें जाके एटीएम में जाओ, पैसा निकालो, या फिर चेक दो, पैसा निकालो, यूपीआई से ट्रांसफर करो. देयर इज 3-4 स्टेप्स इंक्लूडेड. और सबसे लास्ट में आता है हमारा टाइम ड्राफ्ट्स. ऑल्सो ऑल भी होते हैं. और टाइम लाइबिलिटीज, जो क्या जैसे एफडीज हो गए और कुछ अदर चीजें हो गए जो हम अपने डिमांड पे नहीं निकाल सकते. ओके, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड देयर इज अ पेनल्टी, देयर इज अ मैच्योरिटी पीरियड. ओके, तो लिक्विडिटी ऐसे घटते जा रही है. तो मोस्ट लिक्विड थिंग इज करेंसी. तो हम जितना लिक्विडिटी, जितना फ्लो ऑफ कैश बढ़ाते हैं, उतनी हमारी जीडीपी बढ़ती है. द कैश हैज टू फ्लो. ओके, तो VRR इज अ मार्केट बेस्ड ऑप्शन वेयर बैंक्स बिड फॉर फंड्स एंड द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई. ओके, आरबीआई ने अभी एक और कदम लिया था. क्या? उन्होंने सीआरआर को कम किया था. ठीक है, व्हाट इज सीआरआर? दिस इज कैश रिजर्व रेशियो. दिस इज द मनी दैट द बैंक्स मेंटेन विद द आरबीआई. ठीक है, बैंक्स आरबीआई में मेंटेन करती है. किसमें? तो कैश में, सिर्फ और सिर्फ कैश में मेंटेन करती है. और जैसे ही सीआरआर को लो किया जाएगा, अगेन द सेम थिंग विल हैपन कि बैंक्स विल बी एबल टू लेंड मोर. अगर बैंक्स ज्यादा पैसा लोन में देंगी तो पीपल विल आल्सो स्पेंड इट मोर. डिमांड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा.
ठीक है। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो क्या करती है, वो सीआरआर को घटा देती है, ठीक है, या बैंक रेट रेपो रेट को घटा देती है, एसएलआर को घटा देती है, राइट। So these are operations which are being done by the RBI to manage the economy. Okay. Alright guys, that will be from my side. आपको इसके notes इस telegram channel पे मिल जाएंगे. Okay, make sure that you follow us on our channel Defense Mavericks as well. And now since the exam is approaching, we will be coming up with much more videos, full-fledged videos for the topics जो कि will be there to help you in your upcoming examinations. Okay, with this, I'll take your permission. Good night and Jai Hind.